Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Chalo. So let us talk about what is work group. So work group is a peer-to-peer group of computers that share resources but do not belong to any centralized management. वर्क ग्रुप एक ऐसा मॉडल है जो एक दूसरे के साथ में रिसोर्सेस शेयर कर सकता है. व्हाट डू आई मीन बाय रिसोर्सेस? रिसोर्सेस मतलब कोई हार्डवेयर भी हो सकता है और कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है. हार्डवेयर मतलब प्रिंटर, हार्डवेयर मतलब कोई स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर मतलब कोई फैक्स मशीन, हार्डवेयर मतलब कुछ भी जिसको आप नेटवर्क पे ऑनलाइन कर सकते हो उसको हम लोग हार्डवेयर रिसोर्स बोलते हैं. और सॉफ्टवेयर मतलब कोई शेयर फोल्डर हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई आपका कोई नेटवर्क का ऑफ माने सॉफ्टवेयर कॉपी ऑफ एनी नेटवर्क रिसोर्स हो गया, जैसे कोई ड्राइव हो गया, जैसे कोई स्टोरेज हो गया. ये सब कुछ आप शेयर कर रहे हो, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर कर रहे हो, इफ यू आर नॉट मैनेज्ड बाय एनीवन इज नोन एज वर्क ग्रुप. ওর আন্ডারে আমরা লিখব it is a peer to peer group of computer. It is a peer-to-peer group of computer. It is a peer-to-peer group of computers that share resources, but they do not belong, but they do not belong to, but they do not. ফোনটা কার বাজছে? জঞ্জালে ফেলে দাও না ফোনটা. স্যার but do not belong resources but they do not belong to, but they do not belong to any centralized management, any centralized management. ফুল স্টপ. এর আন্ডারে নাম্বার 2 করে লেখো, মানে এটা একটা পয়েন্ট আর একটা বুলেট পয়েন্ট করো, বা তুমি আরেকটা অ্যারো দিয়ে দাও, তুমি যেমন ভাবে লিখছো. ঠিক আছে, belong to any centralized management. ঠিক আছে, আচ্ছা হ্যাঁ এটা ডিসেন্ট্রালাইজড. আচ্ছা এর আন্ডারে নাম্বার 2 করে লেখো, it can be small as two computers or can be larger. It can be as small as two computers. At least दो कंप्यूटर चाहिए हमको एक वर्क ग्रुप एस्टेब्लिश करने के लिए. ध्यान से समझना. And it can be as small as two computers and can be larger. हाँ, it can be as small as two computers or can be larger. ठीक है, अच्छा तो समझो. तो एक पीयर टू पीयर मॉडल या फिर एक वर्क ग्रुप नेटवर्क बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज टू कंप्यूटर्स विथ एक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी. ठीक है, लार्ज जितना हो सके आप करो, स्विच में जितना पोर्ट अवेलेबल है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ करोगे डिवाइस उतना मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है जहां पे बैठ के आप मैनेज कर सकते हो, इसलिए प्रॉब्लम आज नहीं तो कल होगा ही होगा. ठीक है, अच्छा नंबर इसके अंदर में नंबर 3 देखो, इट बिलोंग्स टू, नेक्स्ट पॉइंट, it belongs to a single network normally. 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 Next point, it maintains a decentralized database of users. It maintains a decentralized, বল হ্যালো বল স্যার একটু খেতে এসেছি স্যার, আপনার ওই ক্লাসটাতে স্যার একটু ঢুকতে দেরি হবে. হ্যাঁ ঠিক আছে. হ্যাঁ স্যার. it কি বললাম, it maintains a decentralized database of users.
called की नाम डेटाबेस यूजर डेटाबेस का नाम क्या है वर्क ग्रुप में वर्क ग्रुप में यूजर डेटाबेस का क्या नाम है वर्क ग्रुप नेटवर्क में यूजर डेटाबेस का नाम क्या है जो है सैम सैम लिखो सैम कॉल्ड सैम सैम फुल फॉर्म लिख बे हाँ हाँ नहीं नाम ही है उसका सैम SAM सैम फुल फॉर्म लिख बे सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर ये हर एक सिस्टम पे रहता है ठीक है ना ये कोई भी सेंट्रल लोकेशन पे नहीं रहता है जो सिस्टम पे जितना यूजर बनाओगे एक एक सैम डेटाबेस बनते रहेगा नेक्स्ट पॉइंट ठीक तो एकदम तय करेक्ट नेक्स्ट देखो नंबर नेक्स्ट पॉइंट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इज NTLM authentication protocol is NTLM next point authentication protocol is NTLM अच्छा नेक्स्ट पॉइंट NTLM ফুল ফর্ম জানা আছে তো নিউ টেকনোলজি ল্যান্ড ম্যানেজার ফুল ফর্মটা লিখে রাখো নিউ টেকনোলজি ল্যান্ড ম্যানেজার লেখো ওর সঙ্গে ইট রানস অন পোর্ট নাম্বার ওইটা इट रन्स ऑन पोर्ट नंबर 465 445 हाँ हाँ उसी में लिखो 445 रन्स ऑन पोर्ट 45 445 445 इट रन्स ऑन पोर्ट नंबर 445 NTLM में पोर्ट नंबर 445 है अच्छा अच्छा it is ideal for next point it is ideal for small network or organization it is best for small network and organization বুঝছে কি হলো স্যার বলছি কি আপনি যে থার্ড পয়েন্টটা বলেছিলেন না ডিসেন্ট্রালাইজড ডেটাবেস অফ আ ইউজার হ্যাঁ ওর নাম হচ্ছে স্যাম বুঝছি হোয়াট ইজ ওয়ার্ক গ্রুপ লিখেছি এবার লেখো হোয়াট ইজ ডোমেন এটাকে এত বড় লেখা হয় না বলতেও পারি বড় What is domain? What is domain? अच्छा लिखो it is a এক নম্বর করে লিখবে মানে প্রথম পয়েন্ট it is a Microsoft network commonly referred as referred শক্ত লাগলে known as লিখতে পারো commonly known as বা referred as ADDS domain হয়েছে next point centralized management is available point number 2 में लिखना है centralized management is available next point for centralized management one or more centralized servers are used
one or more for centralized management, one or more centralized servers are used, called domain controller. Called domain controller. Centralized servers are used, called domain controller. Domain controller. Next point. A centralized database is maintained at the DC. A centralized database is maintained at the DC. DC माने domain controller है. A centralized database is maintained at the DC. Maintained at the DC. DC मतलब domain controller. At the DC. DC में. ठीक है. Called कैपिटल में लिखना NTDS डॉट स्मॉल लेटर में DIT, स्मॉल लेटर है DIT, ठीक. NTDS.DIT फुल फॉर्म लिखो. न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस. यस, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस. न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस डॉट new technology directory service dot directory information tree. New technology directory service dot directory information tree, full stop. Says next point, authentication protocol Kerberos v5. Authentication protocol Kerberos v5. Authentication protocol Kerberos v5. Authentication protocol Kerberos v5 হয়েছে. It runs on port number 88. একবার দেখে নি, জানি যদিও এটাই হবে তবু একবার. Kerberos v5 port number 88. UDP TCP both. ঠিক আছে, হয়ে গেছে. নেক্সট. पोर्ट नंबर 88. ये वाला कौन सा बोले सर? पोर्ट नंबर 88 Kerberos का. Kerberos का पोर्ट नंबर 88 है. হয়েছে লেখা? চলো এবার রিডিং করো. What is ADDS? Next, what is ADDS? What is ADDS? Next point है. नेक्स्ट हेडिंग करेंगे हम लोग व्हाट इज डोमेन. तो हो गया मैंने डोमेन मतलब सिंपल वो आपका सर्वर क्लाइंट मॉडल है जो विंडोज प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको डोमेन बोलते हैं. बट डोमेन खाली उतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है. डोमेन काफी बड़ा, एकदम बहुत एकदम पीपल का पेड़ जैसा ब्रांचेस वगैरह बहुत सारा है इसमें. तो हम लोग को वन बाय वन चीजें डिटेल में जानना है कि हर एक पार्टिकुलर एग्जैक्ट चीज का एग्जैक्ट टर्म क्या है, काम क्या है. ठीक है. अच्छा, तो আমরা হেডিং করেছি এডিডিএস. তো এডিডিএস কি? এডিডিএস एक সার্ভিস है. एडीडीएस क्या है? ये एक सर्विस है. फुल फॉर्म एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस. ठीक है. तो एडीडीएस एंड इट्स रिलेटेड सर्विसेज फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ एंटरप्राइज नेटवर्क दैट रन्स ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट चीज समझ लो, एडीडीएस ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया भर में और कोई प्लेटफॉर्म पे आप सेटअप नहीं कर सकते. ये इतना फ्लेक्सिबल और इतना रोबस्ट, इतना कुछ फीचर्स है इसके अंदर, दूसरा प्लेटफॉर्म आपका एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो
लेकिन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए ऑलवेज एडीडीएस यूज किया जाएगा। मतलब यू आर गोइंग टू बाई विंडोज सर्वर टू हैव एडीडीएस, और कुछ भी मत करो, बट यू मस्ट हैव एडीडीएस फॉर द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট উইন্ডোজ সার্ভার সে আচ্ছা কই নেই কর सकता। ঠিক আছে, আমার যতটা ভালোবাসা উইন্ডোজেও আছে ততটা লিনাক্সেও আছে, তাও বলছি এর চেয়ে ভালো কেউ না, নোবডি। আচ্ছা, সো নেক্সট পয়েন্ট ইজ इट इज डिजाइंड फॉर मेनली एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पैसा कोई कांस्टेंट नहीं है। ये चीज को भी ध्यान से समझो। फर्स्ट पॉइंट क्या बोले? ফার্স্ট সেকেন্ড করে তো বলছি না, এটাকে ডিসকাশন ও ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি জাস্ট একটা ডিসকাস করছি, লেখাইনি, লেখাচ্ছি। तो ये ना 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 लेखाচ্ছি না, লেখালে বলবো। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे पैसा देखेंगे बोलने से नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज आर एक्सीलेंट बट इट इज हाई पेड, প্রচুর দাম। এডিডিএস এর দাম নয়, ওএসটারই প্রচুর দাম, ওএসটারই প্রচুর দাম। ठीक है, एक एक लाइसेंस का पैसा लेगा, एक एक क्लाइंट का पैसा लेगा, बोलता है क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस। मतलब आप एक सार्वर से कितने सारे, बंद कर दाओ ना फोनটা, শুনছো এটা ফোনটা সাইলেন্ট করে দেওয়া যায় तो आपका एक सर्वर का तो पैसा लगेगा ही, आपको माइक्रोसॉफ्ट को ये भी बताना पड़ता है कि ये सर्वर से हम कितना लोग को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसका अलग से पैसा लगता है। हाँ হ্যাঁ, গুনে গুনে লাইসেন্স দেবে, একটাও বেশি দেবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा, एडीडीएस डेटाबेस एक सेंट्रल लोकेशन पे रखा जाएगा जिसको हम लोग ntds.dit बोलेंगे। इसके अंदर में बहुत सारा चीजें रहेगा जिसको एक एक को हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का एक डेफिनेशन होता है और एक एट्रीब्यूट होता है। व्हाट इज डेफिनेशन, मतलब इसका नाम क्या है, माने ये क्या है। एग्जांपल, एक यूजर, इट इज अ डेफिनेशन। हर एक ऑब्जेक्ट काम क्या करेगा, बोलो।